Hello guys, myself Tushar Chaurasia, presently a student of IIT BHU. My specialization is pharmaceutical chemistry. In this video lecture, we will study important organic reaction mechanism. So this is all about content. Let me use the first we will study E1 mechanism and second we will study E2 mechanism. So starting with E1 mechanism, as we can see on this screen, E stand for elimination and 1 stand for unimolecular. So E1 indicates an elimination unimolecular reaction. So for example, when we heat a milk and it lead to formation of खोआ, तो जब हम लोग उसको हीट करते तो water is remove होता है, तो that is also a elimination process. So it is a simple analogy. Then the rate of reaction is expressed as K into the substrate concentration, where K is rate constant. So this implies that rate determining step of the mechanism depend on the decomposition of single molecular species. So it depend on this. Overall, this pathway is a multi-step process with the following two critical steps. So I will explain these 2 points on the next slide. So here we can see that this is a E1 mechanism. So it is a two-step process. So this is first step and this is a second step. So initially what is happening that initially the leaving group is leaving. So how is the leaving group is leaving? So we know that the leaving group is chloride, bromide, iodide. वी कॉल्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो हम लोग इसको क्यों गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं? तो गुड लिविंग ग्रुप का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि गुड लिविंग ग्रुप वो होता है जो अब स्टेबल हो सकता है आफ्टर लिविंग. तो मतलब स्टेबल कैसे? फॉर एग्जांपल हमारा क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है, तो ये जब क्लोराइड आयन फॉर्म करके लीव होता है तो हमको पता है कि हमारा क्लोरीन 17th ग्रुप में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो 17th ग्रुप में हमारा क्या क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब आते हैं. तो हमको पता है कि उन सबको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो ऑक्टेट क्या होता है? अगर इन लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे. तो जब ये लिविंग ग्रुप लीव होता है तो ये अब अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके लीव हो गया. तो जब नेगेटिव चार्ज लिया तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. तो इसीलिए इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. तो हम लोग हैलाइड को गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दिस कार्बन एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया और ये लीव हो गया तो Lg माइनस. So after that we have to take care that in the case of E1 reaction there is a two things. One is a weak base, weak base, and other thing is the heat. So E1 require heating and weak base. So I will explain why it require weak base or heating. So in the case of E1, the heating is required for the breaking of this bond. This is according to me, according to my knowledge, if think like that. For example, this is our carbon and this is our living group. Living group कौन सा हो सकता है? क्लोराइड हो सकता, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. तो हम लोग को पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एबिलिटी टू पुल अ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. तो ये इसको, इस बेचारे कार्बन को ये लिविंग ग्रुप जो है क्लोरीन तंग कर रहा होगा, उसको बार बार इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, उसके पास से खींच रहा होगा. जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये बेचारा अपना कार्बन परेशान हो रहा है. तो कार्बन परेशान हो रहा है तो उसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है. अब खींच रहा, तंग कर रहा है, तो फिर वो रिमूव होगा. अब उसके साथ तो रहेगा नहीं ना कार्बन. तो ये लिविंग ग्रुप लीव होता है. और इसमें मेरे अकॉर्डिंगली जो हीटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट रोल करती है ये बॉन्ड को ब्रेक करने में. एंड सेकेंड, व्हाट इज द रोल ऑफ वीक बेस? नाउ आई विल explain in second step. In the second step of mechanism, as we can see that the previously carbocation formation occur. After that, this weak base play an important role in abstraction of this proton. So it will abstract the proton and form
BH and the alkene formation occur. तो अगर हम लोग बोले कि आप लोग के माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा वीक बेस ही क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वीक बेसिस आर अल्कोहल ROH, और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया NaOH। तो हम लोग ने क्यों स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ नहीं किया, तो हम लोग ने इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज़ किया, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं ना तो वो ये वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के जगह वो इधर अटैक करता, ये कार्बोकैटायन को अटैक करता। तो ये तो फिर इवन रिएक्शन होता नहीं। अगर ये कार्बोकैटायन को अटैक कर देता तो ये सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग वीक बेस यूज़ करते हैं। इसका रीज़न सिंपल है, आपको मैं एक एनोलॉजी देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड को 10,000 रुपये की ज़रूरत है और एक फ्रेंड को 1 लाख की ज़रूरत है। तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो आप किसको दोगे? तो सिंपल सा आंसर ये है कि मैं अपने फ्रेंड 1 को दूंगा जिसको 10,000 की ज़रूरत है। इधर भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। रुकिए मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट पहले इरेज कर लूँ तो अच्छे से समझा। तो अभी ये पता है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास है ही नहीं, समझ जाओ। तो इसको लग रहा है कि 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये क्या है, बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इससे मांगेगा, बोलेगा भाई मेरे को दे दे, तो ये इसके इधर इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा होगा। और बट ये वाला कार्बन इतना भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा अपने तरफ, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। बट अब थोड़ा भी खींच रहा है इससे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अब समझो उसका रीज़न। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो स्ट्रॉन्ग बेस अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा रहता, तो वो जा करके इसको दे देता डायरेक्टली। जो हम लोग ने बोला, इसको समझ लो 1 लाख रुपए वाला दोस्त है ये जिसको चाहिए। अब वही हमारा वीक बेस है, तो जब ये कार्बन ये हाइड्रोजन को खींच रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, तो हमारा जो वीक बेस होगा वो आके इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये समझ गए, तो सिंपल यही रीज़न है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कार्बोकैटायन से अटैक कर देगा, और अगर हमारा वीक बेस होगा तो हमारा ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होगा, जिसे हम E1 रिएक्शन बोलते हैं। तो दिस इज अ रिएक्टिविटी ऑर्डर, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड। तो ओरिएंटेशन ऑफ E1 मैकेनिज्म फॉलो अ सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल होता क्या है, तो अभी वो एक्सप्लेन करता हूँ। E1 रिएक्शन यूजली फेवर्स द मोस्ट स्टेबल एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा जो एल्कीन फॉर्मेशन होता है, कौन सा मेजर रहेगा कौन सा माइनर रहेगा, वो हमारा सेटजेफ रूल बताता है। सेटजेफ रूल सिंपल ये कहता है, फॉर एग्जांपल दिस इज आर कार्बन or it is attached to X. X can be chlorine, chloride, bromide, iodide. X is any halide, right? तो हमको पता है कि ये X है, अटैच है कार्बन से डायरेक्टली, तो ये अल्फा होगा। उसके एडजेसेंट वाला बॉन्ड बीटा होगा, और उसके एडजेसेंट वाला बॉन्ड बीटा रहेगा, ठीक है। तो हमारा सेटजेफ क्या बोलता है, और ये कार्बन का 3 हाइड्रोजन से ये अटैच रहेगा, ये 2 हाइड्रोजन से अटैच रहेंगे, इधर शो नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी 2 हाइड्रोजन से अटैच रहेगा, ये 3 हाइड्रोजन से अटैच रहेगा, राइट। तो अभी आप समझो, तो हमको पता है कि हम बोला जाता है कि ये सेटजेफ रूल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब डी हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन निकल रहा है। तो हमारा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलेगा। तो हमारा देख लो आप लोग, बीटा पोजीशन एक ये है और दूसरा बीटा पोजीशन ये है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इधर से भी निकल सकता है इधर से भी निकल सकता है, तो किधर से निकलेगा, तो दोनों जगह से निकलेगा। और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बताएंगे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट। अगर ये इधर से निकल रहा है H, इधर वाला H निकल रहा है HX की तरफ, अब मान लो HX निकल गया, और ये अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये CH3 3H है, 3H है। उसके बाद ये CH, इधर से एक H निकला है, एक रह गया, और इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है।
और इधर एक CH3 है, CH3, ठीक है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड इधर फॉर्म हुआ, राइट। तो हम इसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब आपको पता था क्यों मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि इधर हम देख सकते ये जो दो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके बाजू में एक अल्काइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है अपना मिथाइल। टोटल कितना है, 1 1, कितने हुए, दो अल्काइल ग्रुप हुए। और वही अगर हमारा हाइड्रोजन इधर से रिमूव होता तो हम देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन उधर से रिमूव होता तो देखिए नीचे देखिए, ये देखिए अगर हमारा हाइड्रोजन इधर से रिमूव होता, इधर से, तो हमारा डबल बॉन्ड इधर फॉर्म होता। जब इधर से और ये दोनों निकलते तो डबल बॉन्ड इधर फॉर्म होता। और हम देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड के बाजू में सिर्फ यही अपना इथाइल ग्रुप है जो एक ही है, एक है, इस साइड कोई अटैच नहीं है। बट इधर इस वाले सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि एक इधर है और एक इधर है, टोटल दो है। तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। सेट्जेफ रूल यही बताता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इन इवन एलिमिनेशन the rate determining step is the loss of the leaving group to form the intermediate carbocation. So as I told you that leaving group leave करता है, उसके वजह से हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। The more stable the carbocation is, the easier it is to be formed and the faster the even reaction will be carried out. तो हम लोग को पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो वो ईजिली फॉर्म होगा। इसका रीज़न क्या है कि अगर मान लो हमारा लीविंग ग्रुप लीव होता है तो अगर हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है सॉल्यूशन में, तो अगर मान लो वो स्टेबल नहीं रहा, तो अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो फिर से वो लीविंग ग्रुप के साथ रिएक्ट कर देगा और फिर से अपना रिएक्टेंट साइड बन जाएगा। अगर मान लो उसके जगह हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा टाइम तक उधर उधर ही रहेगा और वो अपने लीविंग ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन है जब हमारा वीक बेस उसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, तो हमारा इवन रिएक्शन होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो दिस इवन मैकेनिस्टिक पाथवे इज अ मोस्ट कॉमन विथ गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड वीक बेस। So good living group I explained you, stable carbocation which I explained you, tertiary carbocation, and weak base we know that abstraction of proton. Now we will study about E2 mechanism. So what is E2 mechanism? So E stand for elimination, 2 stand for biomolecular. So E2 indicates an elimination biomolecular reaction. So E2 is similar to SN2, जैसे हमारा E1 सिमिलर था SN1। तो अपने को पता है कि SN2 में S क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इधर E2 में E क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। SN2 में 2 क्या होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। E2 में 2 क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। तो वही है। और हियर द रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे ही है जैसे SN2 का है। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे, और बी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखो कि E1 रिएक्शन में हम लोग हीटिंग करते हैं और हमारा वीक बेस होना चाहिए। हमारा E2 रिएक्शन में हम लोग हीटिंग नहीं करते हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस implies that rate determining step involves an interaction between these two species, the base and the organic substrate. So we can see that ये हमारा E2 रिएक्शन है जो हमारा SN2 जैसा है। तो हम देख सकते हैं हमारे E2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारा वीक बेस है। तो वीक बेस क्या कर रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमारा NOH है। तो NOH क्या कर रहा है, ये हमारे इधर का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब सेम टाइम हमारा ये इधर से लीविंग ग्रुप लीव हो रहा होगा, उसके वजह से इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो और ये नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो हमको पता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली
ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। कोई भी स्लोएस्ट स्टेप रहेगा ना कोई भी रिएक्शन में, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। तो हमको पता है कि हमारा कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें कम से कम 3 या 4 स्टेप होते हैं या 2 स्टेप होते हैं। तो वो स्टेप में से जिधर भी एक स्टेप में, किसी एक स्टेप में लिखेगा इस इट इज़ अ स्लोएस्ट स्टेप, तो वही स्टेप को हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाएगा। तो सिंपली इधर क्या हुआ कि हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारा सबस्ट्रेट ये है जो अपना, दिस इज आर सबस्ट्रेट एंड दिस इज आर न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों आते हैं। तो इसी की वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में ये दोनों चीज़ आया हुआ है। ठीक है, नाउ आई विल इरेज इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। तो हमारा जब, जैसे मैंने बोला, ये वीक बेस, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा NOH का OH माइनस, ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हमारे ये प्रोटॉन को। जब ये हमारे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारा SN2 की तरह हमारा एक इंटरमीडिएट आएगा। उस इंटरमीडिएट में क्या होगा कि हमारा ये लीविंग ग्रुप लीव हो रहा होगा, ऐसे ऐसे पार्शियल ऐसे दिखाएगा, और हमारा ये वीक बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर चुका होगा, और उसके वजह से क्या होगा कि इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमारे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, तो उसके वजह से हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाए। नाउ आई विल एक्सप्लेन सेकेंड। So this pathway is a concreted process with the following characteristic. So simultaneously removal of the proton H plus, which I explained you, by a strong base, by the base is a strong base, loss of the leaving group which is our chloride, bromide or iodide, and formation of a double bond which is our alkene formation occur. Reactivity, rate of reaction increase as more branch alkene is formed. So it is following a Setzeff rule. तो मैंने एक्सप्लेन ही किया था कि E1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है उधर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच होता है, कि मतलब वो कार्बन बॉन्ड के एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम लोग ने देखा था एक अल्काइल ग्रुप एक अल्काइल, वो हमारा मेजर था। और दूसरा हमारा माइनर प्रोडक्ट में क्या देखा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड हमारा अल्काइल ग्रुप था, वो माइनर प्रोडक्ट हुआ। तो इसमें भी वही सेम फॉलो होता है। now I have completed that both E1 and E2 reaction, so this is a quote for you. So in this quote, all power is within you, you can do anything and everything, it is given by our greatest Swami Vivekanand ji. तो हमारे अंदर हर चीज़ है, if we think that we will score a good rank then we will, because it is all depend upon mindset। अगर हम mindset हमारा strong है, if we think we can achieve we will achieve। तो हम लोग को हमारा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना और हमेशा इंथुजियास्टिक रहना अपने गोल के तरफ। थैंक यू। So in this lecture I have completed E1 and E2. In the next lecture I will complete nucleophilic and electrophilic substitution reaction. अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल रिप्लाई इट विद इन 24 आवर्स। एंड अगर कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग को ईमेल कर दो वाइटल के लिए, और मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। थैंक यू।